डेटिंग अ चाइनीज गर्लफ्रेंड। अरे भाई, डेटिंग पोर्न टोटे वोटे यही जिंदगी है। Assalamualaikum Junaid bhai, my name is ABC. I hope you're doing well. I've been watching your videos for a long time, since times I've lived in Pakistan, and I always felt like you truly understand the kind of struggles we face when we are stuck between desi emotions and modern life. I'm a Pakistani student living in Canada for the last few years. During my second semester, I met this girl who's Chinese by background but born and raised here. It started as normal friendship. She used to help me in studies and I helped her with presentations. Then slowly we started spending more time together. Now I can't imagine my life without her. She's kind, caring, and understands me better than anyone else. I even learned some basic Mandarin just to be able to talk to her. Ni hao. Parents, which talk to her parents, which made her so happy. But honestly, she's more Canadian than Chinese. I think she's the one because she makes me feel calm, confident. With her, I feel like I finally have a home here, a sense of belonging, but I never had before. That I never had before. But Junaid, the problem is my parents will never agree to this. My Abu didn't even let any of my brothers or sisters marry by their own choice. All their marriages were arranged within the family. I was the only one lucky enough to come abroad and escape that system. I know they love me and want the best for me, but they will never understand or accept a non Pakistani girl. My partner is a Canadian citizen, and naturally, if I marry her, my own path to a stable life and citizenship becomes easier as well. But that's not why I'm with her. I'm with her because of stability, emotional and physical. I can't ignore how things might look from my parents' eyes. I don't want to break their heart, but I also cannot leave the love of my life. I'm stuck between my family and my future, and both are equally important to me. I don't know what's right anymore, and I wanted to ask you honestly, what would you do if you were in my place? Alright जी, so ये भाई हैं कनाडा पढ़ने गए और एक चाइनीज कनेडियन से प्यार हो गया, उनको दिल दे बैठे और उनको बहुत समझ आ रही हैं वो उनके पेरेंट्स को खुश करने के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत चाइनीज भी सीखी, विच रिमाइंड्स मी अ वंडरफुल सीन फ्रॉम वेन्स वर्ल्ड 2, जिसमें वेन कैम्बल, विच वॉज प्लेड बाय माइक मायर्स, speaks in Chinese for the very same reason, but he speaks in Cantonese, not Mandarin, if I'm not wrong, because she was actually from Hong Kong, और हांगकांग में कैंटनीज बोली जाती है, और चाइना, ये याद रखिए, सी फॉर चाइना बट लैंग्वेज कोई और सी फॉर कैंटनीज वो हांगकांग में, या दैट्स हाउ आई रिमेम्बर्ड. सो उसमें भी वो यही करता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए उसको बाप से कैंटनीज में बात करते हैं. खैर, वो बात कहीं और की. तो फिर इनको प्यार हो गया और सब कुछ हो गया, बट जालिम समाज बीच में, वालिद साहब जो हैं उन्होंने सारे बहन भाइयों की शादियां कज़नों में ही करा दी और अरेंज विद इन द फैमिली कर दी. एंड ये कह रहा है आई वॉज लकी वन इनफ टू कम अब्रॉड, एस्केप दैट सिस्टम. तो भैया जब एस्केप कर लिया सिस्टम तो फिर बाकी नॉर्म्स भी एस्केप करें. देखें, कैथलिक चर्च होता ना कि सम इवेंट्स आर डन फॉर समथिंग एल्स, बट वो इवेंचुअली, फॉर एग्जाम्पल, कोई नेगेटिव चीज़ के लिए एक चीज़ बनाई गई लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट इवेंचुअली पॉजिटिव हो गया. एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल, डायनामाइट वॉज मेड टू माइन, ताकि पहाड़ पे आराम से बम लगा के फाड़ें और अंदर से सोना निकालें, बट उसका नेगेटिव यूज हुआ वॉर्स में, एंड देन वी सॉ द कार्नेज दैट इट स्प्रेड. सिमिलरली कैथलिक चर्च ने जो एक काम किया जिसकी वजह से आज वेस्टर्न सोसाइटी इतनी तरक्की याफ्ता है, किया उन्होंने, उनका जो द पर्पस वॉज डिफरेंट. असल में पावर जिसके पास होती है वो कहता है मोहल्ले में एक ही बदमाश हो सकता है, दो बदमाश नहीं हो सकते, राइट. सो जो भी होता है, जिस तरह अमेरिका कि भैया दो पावर्स नहीं हो सकती, सो सोवियत हैज टू गो. सो सोवियत इवेंचुअली वाइप्ड आउट, वो रशिया बन गया, राइट, टुकड़े हो गए उसके. तो कैथलिक चर्च की जब अपनी थी तो उन्होंने क्लैंस और किनशिप को तोड़ने के लिए, होता क्या है देखें, आज भी अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में पाकिस्तान में क्या होता है, विद इन फैमिली शादी होती ताकि कंसोलिडेट रहे वेल्थ खानदान से बाहर ना जाए, लैंड खानदान से बाहर ना जाए, या फिर पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए, मतलब ताकत के लिए होती हैं शादियां. मेनली इमोशंस पे नहीं होती, वो इमोशंस कहीं और हो रहे हो. तो उसको तोड़ने के लिए कैथलिक चर्च ने पहले कजन मैरिज बैन की कि भैया जरा बाहर फैलाओ, और फिर उसके बाद अप टू 7th डिग्री नॉन कंसिग्विनस मैरिजेस
जो है इन्होंने बैन कर दी। तो उससे हुआ क्या कि आम तौर पे ज़मींदार हारी किसानों में शादी करता था, अब वो मोचियों के साथ शादी कर रहा है, मोची ज्वेलर के साथ कर रहा है, ज्वेलर उसके साथ कर रहा है, तो वो डिवाइड हुई। और उससे एक फायदा जो हुआ वो एक तो ये हुआ कि दिमाग बंद नहीं रहे, दिमाग और खुले। एक तो जाहिर है डिजीजेस वो वाइप आउट हो गई जो कि आपको ये फेमिलियल उससे हो जाती हैं मैरिजेस से, तो वो दूर हो गई। दूसरा जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज, यू ब्रॉट न्यू ब्रेन्स इनटू द मार्केट, इनटू द फैमिली, एंड फिर उससे ये पहले मैंने पूरा निकाला हुआ था, सॉरी, द आइडिया वॉज टू वीकन द क्लान्स एंड किनशिप नेटवर्क्स, बट उससे हुआ ये कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई और साथ ही साथ राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, राइट। वरना पहले क्लान था ना, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कबीला ही सब कुछ है। तो फिर जब वो कबीला साइड पे लगा तो फिर इंडिविजुअलिटी आई, उससे फिर वो शेप होते होते वो बात गई हक की आवाज, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, और फिर करते 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 जितना हम देखते हैं लीगल एंड कल्चरल रिपल इफेक्ट, जो वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म या एक मॉडर्न सिविक सोसाइटी आप जो कह सकते हैं उसकी बुनियाद यहाँ से पड़ी। सो अब हमारे यहाँ आज भी ये चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। बाप बताएगा कि unhappy household cannot give birth to an unhappy to a happy generation। बात ही खत्म। देर नो टू पॉइंट्स अबाउट इट। सो पॉलिटिकली इसका जो फायदा हुआ कि शिफ्ट फ्रॉम किनशिप टू इंडिविजुअल इन सॉरी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी। फिर उससे जब आदमी मजबूत हुआ तो इंस्टीट्यूशन मजबूत हुए, सही है, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो हम इस चीज़ से कोई सबक सीखते नहीं हैं, हम कहते हैं बस सब फैमिली में हो और बाप डिसाइड करे, बाप जो के क्या बोल सकते हैं आप। तो भाई अब आपका आपसे सीधा सीधा सवाल है, अगर आपकी ये चाइनीज़ गर्लफ्रेंड से कैनेडियन सिटीजनशिप हटा दी जाए, इवन दो आपने लिखा है कि दैट्स नॉट योर गोल बट दैट सम हाउ स्टिल इज, अगर वो हटा दी जाए तो फिर क्या बचता है इस रिलेशनशिप में? पहले तो आप ये देखें, यू फॉरगेट अबाउट व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल, यू फोकस ऑन हु दे रियली आर। वहां पे आपको क्या लगता है? इफ यू स्टिल थिंक यू कैन हैव अ बेटर फ्यूचर विद हर, जस्ट गो फॉर इट। बात करें वालिद साहब से, वो नाराज होंगे, जाहिर है ये चीज़ तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। अथॉरिटी तो लाइक आई सेड कोई भी अपनी पावर देना नहीं चाहता, डेलीगेट नहीं करना चाहता। वो कहते सब हमारे हाथ में रहे, हम ही फैसले करें, हम ही बताएं किसका ब्याह किधर होना है। And then, like, I don't know, when will they ever learn? Will they ever learn? I don't know. I really hope you guys don't end up being the same parents. वरना फिर इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। फिर मैं इतनी वन वे बकवास कर रहा हूँ 4-4 घंटे की, इसका कोई फायदा नहीं है। If you guys will end up doing the same thing. So let your children have their own identity and their own individuality. क्या गारंटी है आप क्लैन के अंदर शादी करेंगे, आप अरेंज मैरिज करेंगे, उसकी क्या गारंटी है? गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, बट अच्छा है डीएनए थोड़ा इम्प्रूव होगा, आपकी नस्ल का थोड़ा सा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आएगा। एंड ऑफ कोर्स कोलैबोरेशंस तो भाई हमेशा अच्छी ही रहती हैं व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक्स, नॉट जस्ट बाय लुक्स बट ऑल्सो लाइक यू नो adds more to the society because it brings the best of both cultures. So I would suggest you talk to your parents, but I'm pretty sure they won't agree. But and it reminds me of the question, जैसे आपको याद होगा एक आया था कि वो चाइनीज़ वेडिंग थी बट वहाँ पे अल्कोहल सर्व होनी थी और पोर्क सर्व होना था और वो बड़ा मसला था। कल्चरल डिफरेंसेस विल ऑलवेज बी देयर, एंड वैसे भी साउथ एशिया में लाइक आई ऑलवेज से कि इट्स नॉट द टू पीपल मैरिंग, इट्स द टू फैमिलीज। तो फैमिली का ऑनबोर्ड होना बड़ा ज़रूरी है, बट अगर नहीं हो रहा और उन्होंने पिग रोस्ट करना है और वाइन सर्व करनी है तो फिर दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। बट ये है कि डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट, डू व्हाट यू कैन अफोर्ड, एंड व्हेन आई से अफोर्ड आई डोंट मीन फाइनेंशियली, आई मीन मेंटली, बिकॉज इट्स मेंटली टैक्सिंग टू डील विद सच पेरेंट्स, इट्स मेंटली टैक्सिंग टू डील विद अ देसी हाउस होल्ड। एक एडवांटेज आपको ये, आप दूर बहुत हो, इतना दूर हो, 18-19 घंटे की फ्लाइट दूर हो, सो दैट्स योर सेविंग ग्रेस। वो बात अलग है कि अब हर कोई मुंह उठा के व्हाट्सएप कॉल कर देता है, मगर डिस्टेंस इज इन योर फेवर। बाकी इफ़ यू आर 100% श्योर कि यू नॉट गोना चेंज योर माइंड आफ्टर शादी और बी लाइक है मेरे से तो गलती हो गई,
मुझे तो अब्बू जी की सुननी चाहिए थी, तो फिर बेहतर है ना ही करो। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपको पता है ना अपने अम्मी अब्बू के मिजाज का, तो उनके मिजाज के हिसाब से ही चीज़ें किया करें। अगेन इन चीज़ों में कोई कंट्रोल नहीं होता, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है तो हो तो जाता है, लेकिन वहीं हाथ डालें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर तो आप लड़ सकते हैं समाज से, तो फिर तो आप घुसे हर जगह, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अम्मी नाराज़ हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बेहतर है किसी और का दिल ना तोड़ें। फिर उससे सिर्फ आपका नाम नहीं खराब होता, पूरी कौम का नाम खराब होता है कि जी पाकिस्तानी धोखा देते हैं। तो पहले ज़रा अपनी लिमिट्स खुद समझ लें, कहाँ तक आप जा सकते हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ तक आपके साथ ऑन बोर्ड हो सकते हैं, कितना मसला होगा कितना नहीं होगा। यू नो योर पेरेंट्स रियली वेल, अगली का कोई कसूर नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट दिल इंसान वहीं जाए जहाँ उसका दिल है। पेरेंट्स पकड़ के करा देंगे किसी के साथ, फिर आपका दिल भी नहीं होगा, मगर आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, एंड देन दैट्स नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उससे बेहतर है बंदा नायग्रा फॉल से छलांग मार ले। आई एम नॉट इंडोर्सिंग सुसाइड, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि वो रोज़ मरना है, रोज़ मरने से बेहतर है एक बंदा एक बार मर ले। सो दैट्स नॉट एन अ राइट एडवाइस। सो do what your heart feel is right, and do what you think you can afford mentally, physically, and emotionally, because there's going to be a lot of drama, I can assure you। ये वो टिपिकल पेरेंट्स होते हैं जिनको वो अपनी अथॉरिटी छोड़ना नहीं चाहते। पीपल हु आर माई एज एंड बियॉन्ड वुड रिमेंबर अ ड्रामा कॉल्ड वारिस। पीटीवी पे एक आता था, चौधरी हशमत उसका एक कैरेक्टर था, आइकॉनिक कैरेक्टर। तो आप यूट्यूब पे ज़रा देखें, उसकी एक आध केस देखें। उसका तो टाइटल प्रोमो ही भाई इतना इतना स्केरी था, मुझे तो डर लगता था चौधरी हशमत घर पे आ जाएगा, डर ही लगता था। वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो वो यही था भाई, ये विरासत में अमरीश पुरी का जो रोल है वही चीज़। तो देसी अब्बू का ये होता है, जब खुद की ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं होती ना, तो फिर वो डर से खेलते हैं। फिर वो डर अगर नहीं चलता तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल, फिर धर्म भी आ जाता है बीच में। वो सारी रेसिपीज, सारे पत्ते होते हैं इनके पास। धर्म दे दो, समाज दे दो, खानदान दे दो, चलो ये इससे भी नहीं आ रहा तो इमोशनल ब्लैकमेल, नहीं तो मेरा मेरा मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब 10,000 चीज़ें। पुत्र तूने बीमार कर दिया वगैरह। यार जीने दे बच्चों को भाई, हल्ली वल्ली टेंशन नहीं ले। खैर, डू यू डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट, and if she makes you happy, and if she makes you feel calm, what else do you need in life? That's the best way to do it. I wish you well, and I hope you do the right thing. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।